rate of 22 per minute. On examination, I found there is decreased chest expansion on right side. There is decreased vocal fremitus on right side. There is dull percussion on right side and auscultation. There are decreased breath sounds on right side of it, as compared to the left side. On relevant examination, I found there is grade 2 clubbing both in hands and feet. And Gigi, Go on. apex speed has not shifted. It's in fifth intercostal phase in mid clavicular. अच्छा ठीक है बोले बोले Other than that, coming to the negative findings, I don't have facial shifting and there's no peripheral or central sinuses. So, if you consolidate your all findings, although you have missed a lots of positive findings in the patient, what is your diagnosis or differential diagnosis? On basis of my examination, my diagnosis is unilateral right-sided pleural effusion. What do you think? What can be the cause of this pleural effusion? Because pleural effusion is not a disease; it's a sequelae of disease, na? So, what can be the cause in this elderly patient? TB, parapneumonic effusion. We are talking about this patient. We are talking about this patient. TB, fair enough. What else? Lymphoma. Did you pick the pallor on the face of the patient? Sorry, I forgot to mention, there is very visible pallor, What about the color of his lips? slightly bluish. Slightly, again check it. They're quite black. Smoker. So what does that indicate? The color of lips, what does that indicate? Sinuses. Sinuses. And what about the pedal edema? It can be because of there could be multiple causes. We can have renal failure. We can have. We're talking about this patient, na? We're talking about this patient. Lymphoma. Can Lymphoma, how it can cause bluish discoloration of lips and periorbital puffiness and pallor on all that. Please, no noise. Relax. This is how they will question you in the exam. So I am just making you practice that thing. An elderly patient with the bluish lips, with puffy eyes, with pedal edema, we can have right-sided heart failure. due to what? You are telling me the sequelae of diseases, but you are not telling me the diseases. Differential diagnosis, right heart failure due to what? Pleural effusion due to what? Cor pulmonale again is not a disease. Right. Again, I didn't check the numbers. See. CA lung. So please justify why it is CA lung, why it can be CA lung, why it should be a topmost priority this diagnosis in the list of your differential diagnosis. क्यों ये number 1 पे क्यों होना चाहिए CA lung? Pleural effusion, malignant pleural effusion, why it should be on the top? First of all, we have unilateral effusion. You can get in pneumonia as well as you can get in TB. We have pedal edema. We have That does not justify that. age, old age. Old age. What else? Or then coming to the labs, Will you listen, please? लैब की बात नहीं हो रही है. okay. हाँ. Bluish lips. It shows that he was a long He's a chronic patient. chronic smoker. Pallor. Some chronic diseases going on. Then after that, bluish lips shows yes, emaciated, wasted था, pale था, bluish lips थे जो बता रहे हैं कि वो smoker भी था, ठीक है, और वो इस हद तक smoker था कि he has developed perhaps right heart failure, cor pulmonale, his right heart is also affected, ठीक है, and all these things they suggest us it might be it is malignant pleural effusion rather than पैरानिमोनिक. Why पैरानिमोनिक? पैरानिमोनिक effusion जो होगी ना वो बड़े शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होगी ना 6 महीने ज्यादा 6 महीने में मरीज इस तरह से नहीं वेस्टेड होता. ठीक है. सो इसका जो नंबर 1 डायग्नोसिस है आपका वो बनता है malignant might be malignant pleural effusion. ठीक है. अच्छा चलो ठीक है. What else? malignant एक हो गया DD आपका. What else? TB. पहले डिस्कस किया था. Okay. What else? That can fit in this scenario. Okay. और बस ठीक है कोई बात नहीं. इट्स ओके. आई डोंट माइंड कि आपकी बड़ी लिस्ट तवील होनी चाहिए लेकिन जो लिस्ट हो वो जस्टिफाई करे. यू शुड बी एबल टू जस्टिफाई दैट. सो हाउ वुड यू इन्वेस्टिगेट दिस पेशेंट? First of all, with complete picture, with total just specific investigation.
Are we going to the imaging direct, or we have to go through the blood test? Specific tests. We can get a pleural tab, and meanwhile we can get serum LC. Sequence of investigations. How would you sequence your investigation? Suppose this patient has just X-ray. First, suppose this patient has come to you in your clinic. You are consultant. You have taken 5,000 P from the patient, which he has managed with a great difficulty. He has taken loan, borrowed from someone. Now the patient is your liability. You have to suggest a test with a great sense of responsibility कि कोई unnecessary test ना हो और बस to the point में टेस्ट ऐसा करवाऊँ जिससे डायग्नोसिस मुझे मिल जाए. तो आपकी क्या लिस्ट होगी? Just X-ray. मतलब वो जनरल हॉस्पिटल में नहीं है जहाँ पर आपका ये है कि जो सारे करा लो ना. जी. HRCT. पहले आपने कहा चेस्ट एक्सरे. ओके ठीक है. ब्लड लैब्स में सीरम एलडीएल, सीरम प्रोटोबुलिन, देन विल गेट प्लूरल टैब. भाई पैसों के हो रहे हैं टेस्ट. प्राइवेट बैठा हुआ है मरीज आपके पास आया कि बहुत बड़ी डॉक्टर है तो मैं इसको प्राइवेट दिखा लूं. लोन पकड़ा उसने फीस और आप उसको अगर ये वाले टेस्ट करवाएंगे तो ये सिर्फ आपको सपोर्ट कर सकते हैं लेकिन ये आपको डायग्नोसिस तो नहीं बता सकते ना. हमने कम से कम टेस्टों के अंदर उसके डायग्नोसिस पे पहुंचना है. जो बिलीरुबिन और ये वो है. वैसे तो बाय द वे बिलीरुबिन तुम्हें क्या बता रही है? बिलीरुबिन तो बीसीबीसी क्या बता रही है? सीबीसी में टीएलसी काउंट से पैरानोमोनिक वो काउंट हो जाएगी और अगर लिम्फोमा है तो फिर हमें does that suggest the specific diagnosis? No, तो not फिर exactly, but चेस्ट एक्सरे ठीक है मान लिए. आगे चलो. HRCT क्यों? HRCT क्यों? उसमें अच्छा चलो अब उसके बाद क्रॉस क्वेश्चनिंग होगी. In what conditions of lung you order HRCT? ILD, fibrosis, COPD. COPD? No, not COPD. We have, like if we want to rule out any malignancy, we want to find any lymph nodes, then we'll get CT with IV contrast. नहीं, you were talking about HRCT ना. So I am asking कि in what condition you order HRCT? उमर अब्दुल रहमान. बताओ ना कौन सी? क्या मतलब है निमोनिया के डायग्नोसिस के लिए तुम्हें अगर कॉम्प्लिकेटेड है मैडम इसके अंदर हम सीटी एचआरसीटी करवा सकते हैं क्योंकि लंग पैरेन्काइमा इन्वॉल्व है इसके अंदर. अच्छा मेरी जो नाकिस नॉलेज है जो कि बड़ी नाकिस है उसमें ये है कि इसके अंदर जिसमें आपको चाहिए होते हैं ना बड़े थिन स्लाइसेस, ठीक है, कि आपको लगता है कि डिजीज मिस हो जाएगी उसमें आप HRCT कराते हो. एक इतना बड़ा निमोनिया का पैच पड़ा हुआ है, ठीक है, या इतनी बड़ी प्लूरल एफ्यूजन पड़ी हुई है या इतना बड़ा कोई ट्यूमर पड़ा हुआ है उसमें सीटी करा लो. तुमने जरूर हुकूमत के रिसोर्सेज जाया करने. इवन इफ यू आर योर पेशेंट इज इन गवर्नमेंट सेटअप नॉट इन प्राइवेट सेटअप तो इवन गवर्नमेंट भी तो दे ही रही है ना, वो किसी और के काम आ जाएंगे. सो HRCT का जो वर्ड है ना ये हमारे मुंह पे चढ़ गया है. HRCT जहां तक मेरी नाकुस राय है या अकल है या याददाश्त है वो सिर्फ इंटरस्टिशियल लंग डिजीजेस में आप करवा सकते हैं या कोई ब्रोंकिटिस वगैरह में आप करवा सकते हैं और मुझे नहीं याद. हाँ ठीक है और वो बड़ी रेयर है. मतलब हमारे यहाँ तो बड़ी रेयर है या फिर अंडर डायग्नोस्ड है क्योंकि हम लोग फिर जाते ही नहीं ना, सोचते ही नहीं है उस तरफ. ठीक है ये बात समझ आ गई आपको? अच्छा जी आपकी प्लूरल टैप हो गया. सॉरी अभी वो नहीं हुआ. एक्सरे चेस्ट हुआ है और सीटी चेस्ट हुआ है जी. व्हाट एल्स? व्हाट डू यू एक्सपेक्ट टू सी ऑन सीटी चेस्ट? हाइलर लिम्फोडेनोपैथी, lymph nodes मिल जाएंगे और लाइक इन दिस पेशेंट मास मिल सकता है. कहाँ? राइट साइड चेस्ट में. वो तो इतनी बड़ी इफ्यूजन पड़ी हुई है. कहीं एक जगह पे मिल जाएगी. मिल जाएगा भाई. उमर अब्दुल रहमान मिल जाएगा. इतनी मैसिव प्लूरल फ्यूजन में मैस मिल जाएगा सीटी चेस्ट पे तो फिर क्या करेंगे? नहीं मेरा तो ख्याल है कि उसको पहले टैप कर लो. तुम टैप कर लेते हैं सारे का सारा ये अच्छा से कर लो 2-3-4 दिन में तो फिर शायद चांसेस हैं इस चीज के कि आपको मिल जाए. बाकी ये है कि इफ दिस मैलिग्नेंसी इज अराइजिंग फ्रॉम प्लूरा जिसके चांसेस हैं तो फिर आप प्लूरल बायोप्सी कर सकते हैं. थ्रैकोस्कोपिक वीडियो असिस्टेड मे बी उस पे आपको जाना पड़े. और अगर आप देखना चाहते हैं कि नहीं अंडरलाइन कोई मैस था और उसके ऊपर ये फ्यूजन पड़ी हुई थी तो मेरे ख्याल में तो मुझे तो एक ही इसकी यू कैन ऑलवेज करेक्ट मी, सारे बच्चे हमारे बैठे हुए हैं कि उसको थोड़ा सा टैप करो, रोज का करो क्योंकि बहुत ज्यादा जल्दी भी अगर आप टैप करें तो री एक्सपेंशन में मॉनोडेमा हो जाता है. और जब आपको लगे कि अब थोड़ा सा ये कम हो गया देन यू कैन ऑर्डर सीटी चेस्ट. और अगर आपको मैस मिल जाता है फिर ना हम उसकी सिटी गाइडेड बायोप्सी ले सकते हैं. लेकिन अगर वो सेंट्रल है
पेरिफेरल नहीं है तो फिर एंडोस्कोपी के थ्रू आपको जाना पड़ेगा। लेकिन असूल ये होता है कि जब भी आप इस तरह शॉर्ट केस में प्रेजेंट कर रहे होते हैं, नॉन इन्वेसिव टेस्ट पहले बताते हैं स्पेसिफिक, और उसके बाद आप इन्वेसिव पे जाते हैं। तो एंडोस्कोपी, प्लूरल टैप, ये इन्वेसिव है, ठीक है। अच्छा, डिड यू फाइंड समथिंग एल्स ऑन द फ्रंट ऑफ हिज चेस्ट? कुछ नोट किया आपने? दादा आपने नोट किया? ठीक किया तुमने, अच्छा किया। आपका बंदा फास्ट है। तो गायनेकोमेस्टिया कौन से ट्यूमर में आता है? लंग के? मुझे तेरे से ही तवक्को नहीं थी। चलो तनहा तुम बताओ। तनहा तो फंस ही गया कसम से, MRCP का बता के ना फंस चुका है। मैम जिसमें ACTH रेज होता है, स्क्वेमस साइट और बस ACTH हाँ, ठीक है। तो इस तरह से सवाल होंगे। फिर उसके बाद वो कहेगा हाउ वुड यू मैनेज दिस पेशेंट? रेफर टू पल्मोनोलॉजी। पल्मोनोलॉजी में तो इंतहाई जाहिल लोग बैठे हैं, सॉरी जी। नहीं वो तो करेंगे, Therapeutic tab। ऑब्वियसली वो तो करेंगे, Therapeutic लेकिन tab। सपोज लाइक आप इस वक्त जो है वो ऐसे सेंटर में नहीं है जो टर्शरी केयर है, यू आर सिटिंग, मतलब आपने एक प्लान बताना है मरीज को, ठीक है, या आपने खुद एक प्लान अपना मुरतब करना है कि हमने ये करना है, ये करना है, ये करना है, अगर ये हो तो क्या करना है, अगर ये हो तो क्या करना है, लाइक दिस। सपोज ये ट्यूमर आ गया, स्क्वेमस सेल ट्यूमर आ गया, अब क्या करेंगे आप? हाउ वुड यू मैनेज? बस सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट और if you have to adapt, just make him comfortable। चले उमर बताओ, स्क्वेमस सेल ट्यूमर आ गया मरीज को, रेडियो, तो अब हम क्या करेंगे उसके साथ ट्रीटमेंट में? मैम ट्रीटमेंट जो है स्टेजिंग की बेस पे होगा। अगर सर्जरी कॉन्ट्राइंडिकेटेड नहीं है सर्जरी होगी। किस में व्हाट आर द कॉन्ट्राइंडिकेशंस ऑफ सर्जरी? चलो सर्जरी मैम ग्रेड 3 और ग्रेड 4 अगर है, स्टेज 3 स्टेज 4 है, सुपीरियर वेना ऑब्स्ट्रक्शन है, मैलिग्नेंट प्लूरल एफ्यूजन है, और FEV1 जो है अगर 1.5 लीटर से कम है, और एक वोकल कॉर्ड ट्रांजिशन, इसमें सर्जरी नहीं करेंगे। और किसमें सर्जरी करते हैं? मैम अगर 1.5 से कम है तो लैप्रोटॉमी करेंगे, अगर 2 से कम है तो न्यूमोनेक्टमी करेंगे। नहीं, किसमें सर्जरी कर देते हैं, मतलब कौन सा ट्यूमर की क्या स्टेज होती है? मैम 1 2 में ग्रेड, अगर T1 N0 M0, हाँ जी, और नॉन अगर है स्मॉल ठीक है। स्क्वेमस सेल। सो व्हाट वुड यू एडवाइस द पेशेंट इन द एंड? वो क्या करें? ये तो सारा आपने बता दिया प्लान। अब वो ये आपने इसको लॉन्ग टर्म जो है वो कुछ एडवाइस करना है, तो आप क्या एडवाइस करेंगे? या वो आपसे पूछ रहा है, फर्ज करें डॉक्टर साहब मैंने क्यों हो गया है, मैं तो कुछ भी नहीं कभी कीता, स्मोकिंग की थी ना, डॉक्टर साहब तुसी ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿਗਰਟ ਪੀਤੀ ਐ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਕਸੂਰ ਸੀ ਤੇ ਇੰਨੇ ਲੋਕੀ ਸਿਗਰਟ ਪੀ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, उनको भी हो जाएगा, वेट करिए। नहीं ਹੁੰਦਾ मैं खुद देखिए। ये ना तो कुछ ना कुछ और हो ही जाएगा। अच्छा ये मैंने सवाल आपसे इसलिए पूछा कि ये कभी भी नहीं कहते, आपने जब भी काउंसलिंग करनी होती है ना तो आप हमेशा उसको ये कहते हैं कि देयर कैन बी थाउजेंड्स ऑफ रीजंस, वन ऑफ देम इज स्मोकिंग, ऑब्वियसली दिस इज नंबर 1 रीजन, बट वी कैन नॉट टेल कि इन योर केस व्हाट वाज द रीजन, क्योंकि एक बंदा पहले ही आपने उसको ब्रेकिंग बैड न्यूज कर दी हुई है, वो पहले ही मर रहा है, गिल्ट का शिकार है, ऊपर से तो आप कहते हैं कि तेरी स्मोकिंग की वजह से ही हुआ है। ये मुझे मॉक में उन्होंने चेक किया था वे बैक लॉन्ग, मैंने जब शौकत खाना में मॉक दिया था पेसिस का, तो इसी तरह मुझे एक सिनेरियो आया, तो उसने कहा जी ये पेशेंट है आपके पास और इसको ये वाला ट्यूमर है, CA लंग है, ठीक है, और वो स्मोकर भी है। अब आपने न्यूज ब्रेक करनी है और उसके कंसर्न्स को एड्रेस ना सुनो, बिल्कुल ना सुनो, बिल्कुल बेकार बातें मैं बता रही हूँ। अच्छा आपने उसको ये ब्रेक करनी है न्यूज, ठीक है, तो आप करें ब्रेक, मैंने सारा सही बता दिया, लेकिन इन द एंड जब उसने मुझसे ये पूछा ना कि डॉक्टर साहब आपके ख्याल में मुझे ऐसा क्यों हुआ, इंग्लिश में पूछा, ज़ाहिर उर्दू में तो नहीं पूछा ना, तो मैंने उसे कहा कि इट इज बिकॉज ऑफ योर स्मोकिंग। तो फिर उस बंदे ने, वो अभी भी वहां पे पाया जाता है, वो MRCP के पेसेस करवाता है, मुझे नाम भूल गया उसका, FCPS के एग्जाम में भी आया, तो उसने कहा कि ये ओके आपने उसको देखो, एक बंदा पहले ही जा रहा है, और बाकी ये सच बात है, ये हमारी टॉप मोस्ट एक एसोसिएटेड रिस्क फैक्टर तो है, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं कि 100% वही है, ठीक है। सो दिस एंड्स आवर टुडेज डिस्कशन, थैंक यू वेरी मच।